ناظرین السلام علیکم، خبر نامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ تلنگانہ کے خشک سالی سے متاثرہ علاقوں کے لیے آفات سماوی ریلیف فنڈ سے 791 کروڑ روپے منظور۔ مسلمانوں کے حقوق کے جہدکار اور مشترکہ مجلس عمل کے کنوینر مولانا عبدالرحیم قریشی کا انتقال، دونوں ریاستوں کے وزرائے اعلیٰ اور صدر مجلس کا خراج۔ ایکس افیشیو ارکان کے بغیر جی ایچ ایم سی پر گلابی پرچم لہرانے کا دعویٰ کرنے پر کے ٹی آر کے چیلنج کو قبول کرنے کے لیے ناگیندر تیار۔ اور حج کے لیے درخواست فارمز کی اجرائی کا آغاز، خانہ پوری کے بعد فارمز 8 فروری تک داخل کر دینے عازمین کو مشورہ۔ سرخیاں آپ نے دیکھی ہے، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ مرکزی وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ نے تلنگانہ میں خشک سالی سے متاثرہ علاقوں کو مرکزی امداد کی فراہمی کے موضوع پر ایک اعلیٰ سطحی کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کی۔ نئی دلی میں منعقدہ اس اجلاس میں مرکزی وزیر فائنانس ارون جیٹلی، وزیر زراعت رادھا موہن سنگھ، مرکزی معتمد داخلہ راجیو مہرشی کے علاوہ داخلہ، فائنانس اور زراعت کی وزارتوں کے سینئر عہدیدار بھی شریک تھے۔ کمیٹی نے تلنگانہ کا دورہ کرنے والی مرکزی ٹیم کی رپورٹ کی بنیاد پر پیش کردہ تجاویز کا جائزہ لیا۔ اعلیٰ سطحی کمیٹی نے تلنگانہ کو قومی آفات سماوی ریلیف فنڈ سے 791 کروڑ روپے تک کی امداد کو منظوری دی۔ ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے ہر محاذ پر جدوجہد کرنے والی مشہور و معروف شخصیت مولانا عبدالرحیم قریشی کا انتقال ہو گیا ہے۔ صبح 4:30 بجے کے قریب انہوں نے اپنی زندگی کی آخری سانس لی۔ جیسے ہی مولانا کے انتقال کی خبر عام ہوئی، ان کی خیمگاہ پر اظہار تعزیت کرنے اور پرسہ دینے والوں کا تانتا بن گیا۔ نائب وزیر اعلیٰ محمد محمود علی، صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی، قائد مجلس مقرنہ پارٹی اکبر الدین اویسی، اے سی بی کے ڈائریکٹر اے کے خان اور کئی سرکردہ شخصیتوں نے ان کی خیمگاہ پہنچ کر افراد خاندان کو پرسہ دیا۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ، آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ چندر بابو نائیڈو اور دیگر قائدین، مشائخ، علماء اور سرکردہ شخصیتوں نے مولانا عبدالرحیم قریشی کے انتقال پر افسوس کا اظہار کیا۔ بیرسٹر اویسی نے ٹویٹر پر لکھا کہ حیدرآباد نے ایک عظیم شخصیت کو کھو دیا ہے۔ بیرسٹر اویسی نے کہا کہ مولانا کا انتقال ان کا شخصی نقصان ہے، کیونکہ مولانا ہمیشہ کئی مسائل پر انہیں مشورے دیتے رہے اور ان کی رہنمائی بھی کرتے رہے۔ مولانا عبدالرحیم قریشی گزشتہ چند دنوں سے علیل تھے۔ 1993 میں مولانا عبدالرحیم قریشی نے تعمیر ملت کے صدر کے طور پر عہدہ سنبھالا تھا۔ تعمیر ملت کے ذریعے انہوں نے قوم و ملت کی فلاح بہبود کے لیے کئی خدمات انجام دی۔ بابری مسجد کی بازیابی کے لیے بھی مولانا عبدالرحیم قریشی کی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ انہوں نے ایودھیا تنازع کے سلسلے میں کتاب بھی تحریر کی تھی، جس سے فیکٹس آف ایودھیا ایپیسوڈ کا نام دیا گیا تھا۔ نہ صرف حیدرآباد بلکہ قومی سطح پر مسلمانوں سے جڑے ہوئے مسائل کو اٹھانے کے لیے مولانا ہمیشہ پیش رہے۔ مولانا عبدالرحیم قریشی مشترکہ مجلس عمل کے بھی کنوینر رہے اور انہوں نے شہر کے اہم قائدین اور علماء کو ایک پرچم تلے جمع کرنے میں بھی اہم رول ادا کیا۔ مشترکہ مجلس عمل کے ذریعے حکومت تک مسلمانوں کی بات پہنچانے میں بھی مولانا نے انتھک کوششیں کی۔ مولانا عبدالرحیم قریشی مسلم پرسنل لا بورڈ کے اسسٹنٹ جنرل سیکرٹری اور ترجمان بھی رہے۔ صدرنشین مسلم پرسنل لا بورڈ رابع حسن ندوی نے بھی مولانا عبدالرحیم قریشی کے انتقال پر گہرے افسوس کا اظہار کیا۔ مولانا کے پسماندگان میں اہلیہ کے علاوہ 5 فرزندان اور 6 دختران شامل ہیں۔ نماز جنازہ بعد نماز عصر مکہ مسجد میں ادا کی گئی اور تدفین نظام شاہی قبرستان افضل گنج میں عمل میں آئی۔ بلدی انتخابات کے لیے پرچہ نامزدگی داخل کرنے کے لیے صرف 3 دن باقی رہ گئے ہیں۔
तेलुगु देशम और बीजेपी इत्तेहाद में अभी ये तय नहीं हुआ है कि कौन सी पार्टी कितने डिवीजन्स पर मुकाबला करेगी। दोनों जमातें पुराने शहर से मुकाबले की हिम्मत नहीं जुटा पा रही हैं। 2009 में तेलुगु देशम ने 45 डिवीजन पर कामयाबी हासिल की थी। वो उन्हीं डिवीजन को तेलुगु देशम के हवाले करने का मुतालबा कर रही है, लेकिन बीजेपी इसके लिए तैयार नहीं है। नशिस्तों की तकसीम के मामले में दोनों जमातों की रसाकशी के दरमियान टिकट के ख्वाहिशमंद कायदीन में बेचैनी पाई जाती है। बाज़ कायदीन का कहना है कि टिकट न मिलने पर वो बाकी उम्मीदवार के तौर पर मुकाबला करेंगे। सदर पीसीसी उत्तम कुमार रेड्डी ने बताया कि बलदी इंतखाबात के लिए पार्टी उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जुमे को जारी की जाएगी। मीडिया से बात करते हुए उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि हफ्ते को उम्मीदवारों की दूसरी फहरिस्त जारी होगी। उन्होंने कहा कि कामयाब होने वाले उम्मीदवारों को इंतखाब में मौका दिया जाएगा। एक सवाल पर सदर पीसीसी ने बताया कि जिन वार्ड्स में अक़लियती वोटर्स की तादाद ज़्यादा होगी वहां पर अक़लियती उम्मीदवारों को मौका दिया जाएगा। अजीमतर बलदिया हैदराबाद के इंतखाबात के लिए बाबाजू की जमातों और लोक सत्ता पार्टी में मुफाहमत हो गई है। जीत हैदराबाद नारे के साथ ये इत्तेहाद 92 वार्ड्स पर अपने उम्मीदवार खड़े करेगा। माहदे के मुताबिक लोक सत्ता पार्टी 35, सीपीएम 33, सीपीआई 22 और सीपीआईएम 2 डिवीजन से मुकाबला करेगी। साबिक़ मरकजी वजीर जयपाल रेड्डी ने मशवरा दिया है कि सियासी जमातों को शोर कम और काम ज़्यादा करना चाहिए, वरना सियासी जमातों पर से अवाम को भरोसा ही ख़त्म हो जाएगा। मीडिया से बात करते हुए जयपाल रेड्डी ने कहा कि जब वो मरकजी वजीर बराए शहरी तरक्यात थे उस वक्त उन्होंने जीएचएमसी के लिए करोड़ों रुपए मंजूर किए, लेकिन इसकी कभी तशहीर नहीं की गई और न ही कांग्रेस पार्टी ने कोई शोर मचाया। जयपाल रेड्डी ने कहा कि वायएसआर के दौर में उनके ताउन से ही हैदराबाद को तरक्की हासिल हुई। साबिक़ मरकजी वज़ीर ने कहा कि निचली सतह की तशहीर के जरिए अवाम को गुमराह करना मुस्तक़बिल में जमहूरियत के लिए खतरे का बायस है। बलदी इंतखाबात में उम्मीदवारों के इंतखाब और टिकट्स की तकसीम के मौजू पर हैदराबाद और रंगारेड्डी कांग्रेस कमेटियों में इख्तलाफात की इत्तला मिली है। रंगारेड्डी कायदीन का कहना है कि ज़िले सदर कांग्रेस और कायदीन के सिफारिश करदा नामों को तरजीह दी जाए, लेकिन सिटी सदर डी नागेंद्र ने कहा कि वो अजीमतर बलदिया कांग्रेस के सदर हैं और उनकी जिम्मेदारी है कि वो ऐसे उम्मीदवारों को टिकट दें जो कामयाबी हासिल कर सकते हैं। नागेंद्र ने यह भी बता दिया कि रंगारेड्डी कायदीन की सिफारिश और तजावीज़ का जायजा लेने के बाद ही कतई फैसला लिया जाएगा। एक सवाल पर नागेंद्र ने कहा कि अगर केटीआर एक्स अफिशियो अरकान के बगैर बलदिया पर गुलाबी परचम लहराने का दावा करते तो वो केटीआर का चैलेंज कबूल करने के लिए तैयार हैं। नहीं, उन लोग दूसरों को देव बोले तो मैं क्यों मानूंगा। मैं ग्रेटर हैदराबाद का, अगर ग्रेटर हैदराबाद में चुनाव अगर जीते तो बोलेंगे हम सब जीता है बोलेंगे, अगर हार गए तो बोलेंगे नागेंद्र की तरफ से हार गए बोलेंगे। लेकिन हम लोग चैलेंज कर रहे हैं, अगर चैलेंज कर रहे हैं 100 सीट जीतते तो मैं भी चैलेंज करना चाहूँगा आपके इस मीडिया के द्वारा, मीडिया के माध्यम से। वो अगर 100 सीट नहीं जीते हो तो सियासत को जो है गुड बाय बोलेंगे क्या, मैं बोलने के लिए तैयार हूँ। केटीआर कौन है, उनके चैलेंज को कबूल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। गांधी भवन में मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस की रुकन राज्यसभा रेणुका चौधरी ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि कल तक सेटलर्स के बारे में जिस तरह की बयानबाजियां की जाती थी, इसके लिए पहले माफ़ी मांगनी चाहिए और फिर सेटलर्स के ताल्लुक से हमदर्दी जतानी चाहिए। रेणुका चौधरी ने कहा कि खुफिया माहदे के तहत 100 नशिस्तों पर कामयाबी का दावा किया जा रहा है। अगर हिम्मत है तो पहले इस्तीफा दें, फिर मुकाबले की बात करें। कांग्रेस की रुकन राज्यसभा ने कहा कि सेटलर्स पर मेहरबानी करने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें हैदराबाद में रहने का दस्तूरी हक हासिल है। रेणुका चौधरी ने यह भी कहा कि बीजेपी और तेलुगु देशम का भी टीआरएस के साथ खुफिया माहिदा हो चुका है। उन्होंने टीआरएस को 2 साला बच्चा करार दिया और कहा कि सिर्फ झूठी तशहीर जारी है, अवाम उसे ज़रूर सबक सिखाएंगे। कौन है बोल के उसका चैलेंज मुझे, क्या बात है भाई, हम चलते रहते कोई भौंकते रहते, हर एक को मैं जवाब दूं क्या बात है। कोई मेहरबानी नहीं कर रहे हैं,
हमारा अधिकार और हक से हम यहाँ रह रहे हैं। हज 2016 के लिए दरख्वास्त फॉर्म की इजराई का जुमेरात को आगाज अमल में आया। हज हाउस में मुनक्कदा तकरीब में ACB के डायरेक्टर AK खान ने दरख्वास्त गुजारों में फॉर्म्स तकसीम किए। इस मौके पर AK खान ने 8 फरवरी से पहले दरख्वास्त गुजारों को अपने फॉर्म्स दाखिल करने का मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि जिन आज़मीन के पासपोर्ट की मियाद ख़त्म हो चुकी है उन्हें फौरी अपने पासपोर्ट की तजदीद करानी चाहिए। इस मौके पर हज कमेटी के स्पेशल ऑफिसर SS शकूर और दीगर ओहदेदार भी मौजूद थे। जो एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं उसके तकसीम के साथ एप्लीकेशन फॉर्म्स तेलंगाना रियासती हज कमेटी की जानिब से आज से दिए जा रहे हैं। इनको फिल करने के बाद 8 फरवरी के से पहले दाखिल करना होता है। इसको ऑनलाइन भी दाखिल कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म्स दाखिल करने के बाद जो कोटा मुकर्रर होता है तेलंगाना के लिए, वो उसके अंदर एक बहुत ही अच्छे तरीक़े के साथ, एक ट्रांसपेरेंट तरीक़े के साथ खुरानंदाज़ी होगी। उसमें आज़मीन हज को चुना जाएगा। इसमें ना रिकमेंडेशन की गुंजाइश है, ना किसी और तरीक़ा में इख्तियार किया जाएगा। सब साफ और एक प्रोसीजर के बराबर ये काम अंजाम दिया जाएगा। पासपोर्ट्स के बारे में बहुत ही अहम चीज़ ये है कि जो भी पासपोर्ट्स आज़मीन हज के पास होते हैं वो मार्च 2017 तक की वैलिडिटी होना चाहिए। इन पासपोर्ट्स को अपने पासपोर्ट चेक करना, और अगर उससे पहले इनका एक्सपायरी डेट है तो फिर पासपोर्ट जल्द से जल्द रिन्यू कराना ज़रूरी है, क्योंकि मोहलत बहुत कम है और वो लोग अलाउ नहीं करेंगे। हाँ, 6 महीने से कम वालों। बैरूनी ममालिक में अक़लियती तलबा को तालीम के लिए दी जाने वाली स्कॉलरशिप्स की दरख्वास्तों के अदखाल की तारीख में 31 जनवरी तक तोसी की गई है। डायरेक्टर MJ अकबर ने बताया कि 31 जनवरी तक ऑनलाइन दरख्वास्तें दाखिल की जा सकती हैं। उन्होंने बताया कि अब तक 210 बच्चों को पहले मरहले के तहत 5 लाख रुपए जारी किए जा चुके हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए telangana.epass.cgg.gov.in पर रब्ता किया जा सकता है। दलित तबके से ताल्लुक़ रखने वाले TRS के कारकुनों ने मजलिस में शमूलियत इख्तियार की। हल्क़े मलकपेट के TRS कारकुन रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला के दफ्तर वाक़े पंजशाह पहुंचकर मजलिस में शामिल हुए। अहमद बलाला ने शामिल होने वाले कारकुनों को मुबारकबाद दी। मजलिस में शामिल होने वाले शख्स ने मीडिया को बताया कि मलकपेट में रुकन असम्बली अहमद बलाला ने मिसाली खिदमात अंजाम दी हैं। इससे मुतासिर होकर उनका ग्रुप मजलिस में शामिल हो रहा है। उन्होंने बताया कि हल्क़े मलकपेट में अब तक इतने तरक्याती काम नहीं हुए थे जितने अहमद बलाला ने कर दिखाए हैं। इस मौके पर मजलिसी कारकुन सैयद अलीम और फारूक भी मौजूद थे। जिले रंगारेड्डी के महेश्वरम मंडल में वाक़े आगा खां एकेडमी में बैनुल-अक़वामी पतंग फेस्टिवल का आगाज़ हुआ। 2 रोज़ा फेस्टिवल में 6 ममालिक की तकरीबन 10 टीमें हिस्सा ले रही हैं। इफ्तिताही तकरीब में रियासती वज़रा KTR और चंदूलाल के अलावा महकमे सियाहत के सेक्रेटरी B वेंकटेश्वरलू ने हिस्सा लिया। फेस्टिवल के दौरान आगा खां एकेडमी के अहाते में रंग बिरंगी और मुख्तलिफ अक़साम की पतंगें फ़ज़ा में देखी गईं। आसिफ नगर के मुख्तलिफ इलाकों में महकमे चाइल्ड वेलफेयर की तरफ से ऑपरेशन मुस्कान के तहत दुकानों और होटलों पर धावे करते हुए 39 बच्चों को आज़ाद कराया गया। इन बच्चों में 19 का ताल्लुक हैदराबाद से बताया गया है। बाद में बच्चों को आसिफ नगर पुलिस के हवाले किया गया। सरपरस्तों को बुलाकर भी इस बात की ताकीद की गई कि अगर दोबारा बच्चे किसी दुकान या होटल में काम करते हुए पाए गए तो सरपरस्तों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। चाइल्ड वेलफेयर महकमे के अहदेदार रजनी ने इस मौके पर सरपरस्तों की काउंसलिंग की और उन्हें मशवरा दिया कि बच्चों को तालीमी इदारों में शरीक कराया जाए और उनके मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के लिए तवज्जो दी जाए। के अंदर जो बच्चे डिफरेंट एस्टेब्लिशमेंट में काम करने वाले खबर है, वो खबर पे हमारा
SIs और असिस्टेंट लेबर ऑफिसर रजनी मैडम और चाइल्ड लाइन कोऑर्डिनेटर संजीव के जरिए में करके उसमें 34 चिल्ड्रन को रेस्क्यू किए। उसके ये बच्चों के माँ बाप को बुला के काउंसलिंग करके पहली मरतबा, और उसके जो काम कर लें एस्टेब्लिशमेंट के दुकानदार वाले या मास्टर्स, उसको लीगली एक्शन। दंडीगल पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़ सुरराम कॉलोनी में हुए झगड़े में एक शख्स पर सर मौका हलाक हो गया। जमेरात की दोपहर के औकात में ख़ानदान के 4 रिश्तेदार रंता देवी, उसका शौहर प्रेम, मोहराबाई और उसके शौहर संगातन शराब नोशी कर रहे थे कि इस दौरान रत्ना देवी और उसकी बहन मोहराबाई के दरमियान बहस व तकरार हो गई। संगातन ने तैश में आकर प्रेम के सर पर लाठी से हमला कर दिया, जिसके नतीजे में प्रेम बरसरे मौका हलाक हो गया। दंडीगल पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तीनों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि लाश को पोस्टमार्टम के लिए गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। शहर के मज़ाफ़ाती इलाके हयात नगर में वाक़े डीर पार्क में आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया। तफसीलात के मुताबिक डीर पार्क की घास और दरख्तों में आग लग गई। कुछ ही देर में आग ने बड़े रकबे को अपनी लपेट में ले लिया। पार्क में दर्जनों हिरन के अलावा हम अक़साम के परिंदे भी मौजूद हैं। इतला मिलते ही फायर ब्रिगेड का अमला मुकाम वाक़या पहुँच गया। अभी तक किसी जानवर को नुकसान होने की इत्तला नहीं मिली है। मुकामी हुक्काम ने वाक़े की तहक़ीक़ात शुरू कर दी है। सिकंदराबाद के बोइनपल्ली इलाके में वाक़ सवर्णा भारती कॉलोनी में ट्रांसफार्मर में अचानक आग लग गई। मुकामी अवाम ने बताया कि ट्रांसफार्मर में धमाके की आवाज़ आई, जिसके बाद अचानक आग लग गई। मुकामी अवाम के मुताबिक फायर ब्रिगेड के अमले और बरक़ी हुकाम को इत्तला देने के बावजूद भी वो वक्त पर नहीं पहुंचे। यूसुफपुरा कृष्णानगर के इलाके में जनरल स्टोर में आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया। तफसीलात के मुताबिक बालाजी स्टोर में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। तकरीबन 40 लाख रुपए का सामान जलकर खाकस्तर हो गया। इत्तला मिलते ही 3 फायर इंजनों ने मुकाम वाक़ा पहुंचकर आग पर काबू पाया। किसी भी तरह के जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं मिली है। मुकामी पुलिस ने भी मुकाम वाक़ा पहुंचकर तफसीलात हासिल की। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। तेलंगाना के खुश्कसाली से मुतासरा इलाकों के लिए आफात समावी रिलीफ फंड से 791 करोड़ रुपए मंजूर। मुसलमानों के हुकूक के जहदकार और मुश्तरका मजलिस अमल के कन्वेनर मौलाना अब्दुल रहीम कुरैशी का इंतकाल। दोनों रियासतों के वज़राए आला और सदर मजलिस का खराज। एक्स अफिशियो अरकान के बगैर जीएचएमसी पर गुलाबी परचम लहराने का दावा करने पर केटीआर के चैलेंज को कबूल करने के लिए नागेंद्र तैयार। और हज के लिए दरखास्त फॉर्म्स की इजराई का आगाज। खानापुरी के बाद फॉर्म्स 8 फरवरी तक दाखिल कर देने आज़मीन को मशवरा। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।